On World Cancer Awareness Day. Today, we come together to raise awareness, observe and share hope, and strengthen our commitment to the fight against cancer. Cancer affects millions of lives worldwide, but through awareness, early detection and advancements in treatment, we can make a difference. This day is not just about recognizing the challenges, but also celebrating the strength of survivors, honoring those we have lost, and standing in solidarity with patients, families who battle this disease every day. Let us unite our voices, spread knowledge, and inspire action, because together we can create a world where cancer is no longer a life-threatening disease. Shubham Karoti Kalyanam, Arogyam Dhana Sampada, Shatru Buddhi Vinashaya, Deepajyoti Namaste. Lighting a lamp symbolize hope, strength, and the triumph of light over darkness. Today we illuminate over this lamp. We honor the resilience of cancer warriors, remember those we have lost, and reform our commitment to spreading awareness and supporting the fight against cancer. Now, I invite Dr. Sangeeta Garg, consultant gynecologist and obstetrician, our Vice Chancellor, Dr. Dharamveer Singh, a visionary leader and a guiding force behind our institution's success. Pro Vice Chancellor, Dr. Rama Bhargava, a provisional leader and academic trailblazer. Pro Vice Chancellor Sir, Dr. Adesh Arya, a guiding light for Haridwar University. Dr. Sonia Sharma, Principal of Nursing Department, and Vishal Sir, to kindly proceed with the lamp lighting ceremony, marking the beginning of this meaningful event. Let us unite in hope and determination. Now, it is my honor to invite Dr. Sonia Sharma, the esteemed principal of the nursing department. Ridhima and Rishi, a very good morning to one and all present here, and a very warm welcome to all the dignitaries, distinguished guests, and respectable Vice Chancellor Sir, Dr. Dharamveer Singh, and Pro Vice Chancellor, Dr. Rama Bhargava, Pro Vice Chancellor Sir, Dr. Adesh Arya, faculty members, and our enthusiastic students. In golden embark of this daybreak, we are gathered here for a momentous occasion of World Cancer Awareness Day 2025. I heartily welcome to our dazzling guest speaker, Dr. Sangeeta Garg, who is a consultant obstetric and gynecology. Your work in healthcare field has been truly revolutionary, and your insight today will no doubt be both enlightening and inspiring. So without wasting much, Pro Vice Chancellor Dr. Rama Bhargava with the sapling.
is a power. That's why we all are here. So with this quote, I would like to welcome all of you once again, and I request Dr. Sangeeta to continue the session. First of all, I would like to thank Vice Chancellor Sir, Vice Chancellor Ma'am, and all the administration of Haridwar University and dear students. हम सब आज इकट्ठा हुए हैं 4 फरवरी जो वर्ल्ड कैंसर डे है इसको मनाने के लिए। और इसका क्या पर्पज़ है? इसका पर्पज़ है कि हम जो कैंसर जैसी डिजीज है उसके बारे में जागरूक हो, अवेयरनेस बढ़ाई जाए। बिकॉज डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट, नेवर गिव अप होप, टुगेदर वी कैन बीट इट। It came, we fought, I called it tumor. So cancer cells may spread to other parts of the body also, interfering with normal body function. तो कैंसर एक सिंगल डिजीज नहीं है, affects so many parts of the body and different organs also. So the likelihood of developing any particular cancer depends on an individual's genetics, environment, and lifestyle. So occurrence of the some cancers, it can be prevented and reduced by wise lifestyle choices. तो क्या कैंसर का कितना स्प्रेड है? हाउ मच इट इज worldwide? It is cancer is very increasing nowadays because of the non-communicable diseases are increasing, और उसकी वजह से कैंसर बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो वी नो कि मिलियंस ऑफ डेथ अगर ग्लोबली वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ द कैंसर ओनली। एंड जो थीम है, इसीलिए ये वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। इस साल की थीम क्या है? एनीवन नोस व्हाट इज द थीम फॉर दिस? यूनाइटेड बाय द यूनिक। गुड। तो ये इस बार की थीम है जो 25, 26 और 27 3 इयर्स के लिए इसको हम इस थीम को लेके चलेंगे, जो WHO और ये जेनेवा में वर्ल्ड कैंसर सेंटर के लिए इंस्टीट्यूट है उससे। तो हाउ कैन वी डिक्रीज और वी कैन नो अबाउट द preventive measures of the cancer? So we can use develop healthy lifestyle changes, and we can avoid tobacco, smoking and all. These are the important risk factors for the cancer, and we should know about some risk factors also. तो उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो you don't need to cure cancer if you can prevent it. तो अभी तो हम कुछ जनरल कैंसर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कैंसर्स हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन हैं। तो 30% जो कैंसर्स हैं वो स्मोकिंग की वजह से होता है। स्मोकिंग में क्या है? टोबैको अगर आप ले रहे हैं, आप सुपारी, पान, जर्दा वाला या अल्कोहल ले रहे हैं, तो ये सब कैंसर्स इसकी वजह से। 35% कैंसर्स जो बिकॉज ऑफ द डाइट एंड बिकॉज अल्कोहल कैन आल्सो कॉज लिवर कैंसर, जो बहुत बड़ा कारण है ये भी लिवर कैंसर का। तो अल्कोहल से ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, लिवर कैंसर भी हो सकता है, हेड एंड नेक कैंसर भी हो सकता है, स्टमक भी हो सकता है, स्टमक कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा डाइट में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं? हाई फैट डाइट जो है वो कैंसर को प्रमोट करती है। अगर आप लो फाइबर डाइट लेंगे वो भी कैंसर को प्रमोट करती है। तो प्रिजर्व फूड है, प्रिजर्वेटिव्स है, फ्रोजन फूड है, ये सब हमने इस बारे में बात किया है। तो ये सब चीजें जो है हमको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी कम रहेगी तो आपका वेट बढ़ेगा तो आपका BMI बढ़ेगा, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो बढ़ेगा। तो ये बॉडी मास इंडेक्स बढ़ने से बॉडी में कई चीज रिएक्शंस होती हैं जो कैंसर के चांसेस को बढ़ा देती हैं। तो इसके अलावा अगर आपका वेट ज्यादा है तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। अगर ये सब चीजें होंगी तो इन्फ्लेमेशन, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब कौन से कैंसर को बढ़ाते हैं? ब्रेस्ट कैंसर को, कोलोरेक्टल कैंसर को, गॉल ब्लैडर कैंसर को, किडनी कैंसर को, और ये सब जो है बॉडी वेट से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा सब पॉलिडेंस से आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और डाइट में आपको क्या लेना है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रिच डाइट लेना है, बजाय जंक फूड को अवॉइड करना है। जंक फूड में आप लोग नहीं जानते कि काफी कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स होते हैं जो लंबे टाइम तक अगर एक्सपोज रहे हमारी बॉडी को तो दे कैन कन्वर्ट इनटू द कैंसर। सो लाइफस्टाइल चेंजेस, टोबैको और रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब चीजें जो है हमारा इन सब करके हम जो है कैंसर से बच सकते हैं। ये तो कुछ जनरल कैंसर्स की बात हुई, लेकिन हम जो आजकल जो हमारा जो फोकस बहुत ज्यादा है, खासतौर से जो फॉक्सी हमारा फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इस वक्त सबसे ज्यादा जो कैंसर है महिलाओं में
दो कैंसर सबसे ज्यादा है, एक ब्रेस्ट कैंसर और एक सर्वाइकल कैंसर। तो आप गर्ल्स हैं यहाँ पे, बॉयज भी हैं, लेकिन बॉयज का भी इसके बारे में इसलिए जानना है क्योंकि उनके घर में भी महिलाएं हैं और मातृशक्ति जो हमारी है, अगर हम उसको बचाएंगे तो ये दुनिया बचेगी। तो इसलिए आप सबको भी इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली अब इन कैंसर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कॉमन फीमेल जेनेटिक कैंसर्स होते हैं, कैंसर सर्विक्स, कैंसर ब्रेस्ट, कैंसर एंडोमेट्रियम, कैंसर ओवरी, वल्बर वेजाइनल कैंसर्स एंड अदर्स। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन है वर्ल्ड इंडिया में, वर्ल्ड में भी जो नंबर 1 कैंसर है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर से गर्ल्स कैसे बचा सकती हैं अपने आप को? स्क्रीनिंग करके। स्क्रीनिंग तो हमारा जो फोकस है, जो ये वर्ल्ड कैंसर डे का है, यही है कि आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप, पहले प्रिवेंट करें, फिर उसकी स्क्रीनिंग करें और स्क्रीनिंग करके उसका क्योर करें। तो स्क्रीनिंग करके हम पहले अर्ली टाइम में डायग्नोज कर सकते हैं किसी भी बीमारी को। तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपने आप लड़कियां महिलाएं अपने आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकती हैं, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकती हैं। एक मैमोग्राफी होता है, एक्सरे, जैसे आप छाती का लेंस का एक्सरे कराते हैं, ऐसे ही ब्रेस्ट का एक्सरे होता है जिसको मैमोग्राफी कहते हैं, लेकिन ये 40 इयर्स के बाद होना चाहिए। इसके अलावा MRI स्क्रीनिंग कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग सेफ है, अगर कभी भी किसी को लंप या कोई चीज फील होती है गर्ल को, तो शी कैन गो फॉर अल्ट्रासाउंड, नॉट मैमोग्राफी, बिकॉज मैमोग्राफी इज हार्मफुल इन अर्ली एज। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जब खुद करते हैं महिलाएं, और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जब कहीं हॉस्पिटल में जाके या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से करवाते हैं। तो सेल्फ एग्जामिनेशन में सिर्फ इतना बताऊंगी भी गर्ल्स को कि 20 इयर्स के एज के बाद आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन फिनिश हो जाए उसके बाद वो एक फिक्स डे कर ले कि हमें 5th डे या 7th डे करना है। और अगर उसमें अपना ब्रेस्ट का टेक्सचर को फील करें, डेली चेक करें कि आपको कोई चेंजेस तो नहीं लग रहे हैं। तो अगर कुछ चेंजेस लग रहे हैं तो आपको उस पर नोट डेवलप होने लगेगा, तो यू कैन काउंट ऑन बिफोर दैट। आर्म पिट में, अंडर में अलग अलग तरीके से, ये 3 तरीके हैं जिससे आप ब्रेस्ट को दोनों तरह से एग्जामिन कर सकते हैं, सर्कुलर पैटर्न में, ग्रिड पैटर्न में और क्लॉक पैटर्न में। तो 4 पोजीशंस में सीधे खड़े होकर के, डाउनवर्ड करके, लेट करके, सभी पोजीशन में आपको अपनी 3 फिंगर से इस तरह से पैल्पेट करके अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। तो वार्निंग साइंस क्या होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? कभी भी अगर कोई भी निप्पल डिस्चार्ज आ रहा है, कोई व्हाइट, येलो, रेड, थिक, कैसा भी डिस्चार्ज अगर ब्रेस्ट से आ रहा है तो आपको अलर्ट होना है, डॉक्टर को दिखाना है। कभी भी कोई लंप या कोई हार्ड नॉट या कोई थिकनिंग फील हो रही है, कभी स्वेलिंग, रेडनेस या वार्मथ फील हो रही है, डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंस फील हो रहा है, या फिर चेंज इन द साइज और शेप ऑफ द ब्रेस्ट है, कभी भी डंपलिंग, निप्पल अंदर को लग रहा है, अंदर को धस रहा है, तो भी वो वार्निंग साइन है। या इचिंग हो रही है या इसके लिए रैशेस हो रहे हैं निप्पल पर, तो भी आपको उसको वार्निंग साइन की तरह से लेना है। या फिर निप्पल डिस्चार्ज जो अचानक से आने लगे, जब मदर फीड कराती है तो डिस्चार्ज होता है, दैट इज नॉर्मल, लेकिन उसके अलावा अगर कभी कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो दैट इज ए वार्निंग साइन। और कभी अचानकली सडनली न्यू पेन डेवलप हो गया है जो वैसे नहीं था या नहीं जा रहा है, तो यू कैन सी द स्किन चेंजेस इन द ब्रेस्ट। दिस इज द मैमोग्राफी, हाउ वी डू द मैमोग्राफी। दिस इज एन एक्सरे, breast is placed between the 2 films. This is the film of the mammogram. तो अक्टूबर को जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह से माना जाता है। अब इसके बारे में बाद हम थोड़ा बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर में आप जो गर्ल्स हैं वो हर महीने खुद चेक करें, जो बॉयज हैं वो घर जाके अपनी मदर को, सिस्टर को इसके बारे में आगाह कर सकते हैं कि आपको हर महीने अपना चेकअप कराना है, खुद करना है। कभी भी कोई एबनॉर्मलिटी लगती है तो शर्माना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये जितना आप अवेयरनेस खुद देखेंगे और फैलाएंगे उतना ही हम इस ब्रेस्ट कैंसर से फाइट कर सकते हैं और अर्ली डिटेक्शन कैन इजीली क्योर दिस कैंसर। अब सर्वाइकल कैंसर जो है, सर्वाइकल कैंसर का नाम सुना है आप सबने? क्या होता है? कैंसर ऑफ द सर्विक्स। तो वी कैन एंड सर्वाइकल। तो ये जो हम
it is the second most common cancer in women living in low and middle income countries. फास्ट जा रहा है प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन बहुत फास्ट हो रहा है। देख लेंगे क्या प्रॉब्लम। फास्ट फॉरवर्ड, हाँ ये प्रेजेंटेशन ना फास्ट जा रहा है। हाँ पीडीएफ है ना ये, इसलिए वो कहाँ स्लाइड क्या ये माउस करके ऊपर नहीं जा रहा है? नेक्स्ट से कितना जाता है नीचे? एक स्लाइड हो रहा है ना, तो इसी से जाना। तो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो क्यूरेबल है अगर हम इसको टाइमली डायग्नोज कर लें। 1 वुमन डाइज ऑफ सर्वाइकल कैंसर एवरी 8 मिनट्स। तो इंडिया पे इसका बहुत बर्डन है। इसकी वजह से जो एलिजिबल, जो एक हेल्दी मतलब मदर है, फैमिली को चला रही है लेडी, अचानक से सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज हो गया तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए फिर हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी अभियान चलाया है फॉक्सी के साथ मिलकर के। तो ये तो कितनी डेथ हो रही है मैंने इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो हम बात इसमें करेंगे कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर को। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि प्रिवेंट इन्फेक्शन थ्रू वैक्सीनेशन, एंड सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई एंड ट्रीट अर्ली सिम्टम्स थ्रू स्क्रीनिंग। तो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? वी शुड गो फॉर एचपीवी वैक्सीनेशन इन गर्ल्स एंड स्क्रीनिंग इन वुमेन। जो 9 to 14 इयर्स ओल्ड गर्ल्स हैं उसके लिए बेस्ट टाइम है एचपीवी वैक्सीनेशन का, और 30 इयर्स से ज्यादा की जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनको स्क्रीनिंग किया जाए इसके लिए, और 65 इयर्स की एज तक इसको करना है। तो वी कैन एंड सर्वाइकल कैंसर बाय गेट इन्फॉर्म्ड, गेट स्क्रीन्ड एंड गेट वैक्सीनेटेड। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम इससे इन्फेक्शन हो रहा है? क्योंकि इसके शुरू में एचपीवी इन्फेक्शन अगर है तो देयर आर नो साइन और सिम्टम्स, and in most cases never develop any problems caused by HPV. HPV क्या? Human papilloma virus, जिसकी वजह से ये सर्वाइकल कैंसर होता है। However, in 10 to 30% of females, HPV infection does not go away. In this situation, there is a greater chance of developing cervical precancer and then cancer in next 10 to 15 years. So it takes a very long time to develop cancer, but timely by doing screening we can diagnose it very early. So only sexual monogamy and using condoms do not guarantee protection against HPV. 1 out of 2 women may be HPV positive even with 1 male partner. Otherwise, cervical cancer के लिए माना जाता है कि multiple sexual partners it increases the risk of the cervical cancer. तो cervical cancer risk factors क्या क्या हैं? एक तो HPV, human papilloma virus, second many sexual partners, third sexual intercourse in a very young age, fourth giving birth to many children. अगर आप 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे अगर बर्थ का वो होगा तो भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग इंक्रीजेस वेरी फास्टली दिस सर्वाइकल कैंसर। सो दीज मेन 5 रिस्क फैक्टर्स फॉर द सर्वाइकल कैंसर। एंड डू यू नो कि हैविंग डिजीज विद लोअर इम्यूनिटी, जैसे अगर कोई ऐसी बीमारियां हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, HIV है, इन्फेक्शंस हैं, या मालन्यूट्रिशन है, या आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं किसी की भी वजह से, तो ये सब चीजें भी सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ा देती हैं। तो 95% of cervical cancer cases are caused by a virus known as a HPV virus. As per the US data, there has been a significant decrease in HPV-related precancers and cancers in vaccinated women since 2006, when the HPV vaccine was first introduced. सबसे पहले 2006 में वैक्सीन आ गई थी। The percentage of cervical precancers caused by HPV types most often linked to cervical cancer decreased by 40%. लेकिन उन कंट्रीज में जहाँ पे HPV वैक्सीनेशन यूज हो रहा है, हमारे अभी इंडिया में HPV वैक्सीनेशन के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए अभी भी कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा इसका प्रेवलेंस है। So these are the 3 steps: vaccinate एंड स्क्रीनिंग बाय पैप स्मीयर और HPV टेस्ट। ये 2 टेस्ट है जिसकी वजह से हम इसको अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। तो डोंट लेट सर्वाइकल कैंसर स्टॉप यू, गेट वैक्सीनेटेड एंड गेट स्क्रीन्ड। इट्स टाइम टू एंड सर्वाइकल कैंसर।
What is the WHO call for elimination of cervical cancer? This is the life course. तो WHO चाह रही है कि 2030 तक सर्वाइकल कैंसर का जो है बहुत कम हो जाए। इसके लिए हमको हर जगह जगह अवेयरनेस कैंप्स लगाने होंगे, लोगों में अवेयरनेस डालनी होगी और सभी लोगों को अपने बच्चों को 9 to 14 ईयर्स से या फिर 26 ईयर्स तक वैक्सीन लगवानी होगी। ये चीज हम बार बार रिपीट करेंगे ताकि आप लोग इसको अपने माइंड में रजिस्टर कर लें कि वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इज द कोर्स कि अर्ली एज में एचपीवी वैक्सीनेशन काफी ऊपर तक जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखिए एज के साथ ही कम होता चला जाएगा और कुछ ही % केसेस में सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है। तो 9 to 14 ईयर्स में एचपीवी वैक्सीनेशन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, इट इज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज में को दोनों को ही हेल्थ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको वार्निंग होनी चाहिए अगेंस्ट टोबैको यूज, क्योंकि टोबैको आल्सो इंक्रीजेस दीस टाइप्स ऑफ कैंसर्स, and sexual education tailored to age and culture, condom promotion and provision for those engaged in sexual activity and male circumcision. ये जो है प्राइमरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अगर वुमेन 30 ईयर से ऊपर की एज हो गई है तो स्क्रीन एंड ट्रीट, तो HIV की टेस्टिंग करें, HPV की टेस्टिंग करें और आगे इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए चलें। और टर्शियरी प्रिवेंशन में अगर आपको पता चल ही गया है कि सर्वाइकल कैंसर हो गया है तो उसका टाइमली इलाज करें। उसके लिए 3-4 तरीके हैं, सर्जरी होती है, फिर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और पैलिएटिव थेरेपी, पेन वगैरह उसको रिड्यूस करने के लिए, तो उससे काफी हद तक लाइफस्टाइल बेटर की जा सकती है। तो WHO क्या कह रहे हैं कि अब कोई भी औरत किसी भी ऐसी बीमारी से जिसको हम रोक सकते हैं उससे मरना नहीं चाहिए उसको। तो हम सभी ऐसी चीजें जो भी कर सकते हैं उसके लिए सबसे जो बेस्ट पार्ट है दैट इज टीकाकरण, यानी कि वैक्सीनेशन। या अपना टीका लगवाएं, वैक्सीनेशन करें और 30 साल के बाद वो सभी महिलाएं, आपके घर में जो भी महिलाएं होंगी उनको आप वो करें, अवेयर करें कि आप एक बार जरूर जाकर के अपनी ये जांच करवाएं। तो 90% गर्ल्स जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड होनी चाहिए, 70% वुमेन का स्क्रीनिंग होना चाहिए और 90% वुमेन जो आइडेंटिफाई हो जाए सर्वाइकल कैंसर है उनको, तो दे शुड गो फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो यही 3 उनका वो है 3 डायमेंशनल दृष्टिकोण है उनका। तो वर्ल्ड विदाउट सर्वाइकल कैंसर बाय 2030 इट शुड बी लेस देन 4 in 1 lakh पर्सन्स। तो एचपीवी वैक्सीन किसको लग सकता है? अब आपके मन में शक होगा कि कौन ले सकता है इसको, एचपीवी वैक्सीन को, और कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। तो ये जितनी जल्दी एज में लेंगे उतना अच्छा है, इसका उतना ही डिजीज से बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो जो गवर्नमेंट ने या WHO ने जिसका जो एज किया है वो 9 to 14 ईयर्स है, लेकिन कैचअप जो है वो 26 ईयर्स तक है। तो अगर 15 ईयर्स से पहले ले लेंगे तो 2 times हायर प्रोटेक्शन डोजेस हैं। तो बेटर तभी करती जब 9 to 40 है, लेकिन 26 ईयर्स कैचअप है, आप तब तक ले सकते हैं। तो WHO कभी कभी रिकमेंड भी करता है गार्डेसिल 4 के लिए कि सिंगल डोज भी अगर आप ले लें तो इट्स बेटर नॉट टू टेक एनी डोज। और 20 to 45 ईयर्स में 3 डोजेस लेनी है। तो ये वही डोजेस का शेड्यूल है 0, 2 and 6। अगर एक डोज आज ली है तो एक 2 महीने बाद लेंगे और एक 6 महीने के बाद लेंगे। और अगर 15 से 26 ईयर्स की एज की गर्ल्स हैं तो उनको 3 डोजेस लेनी है, आज 2 महीने के बाद और एक 6 महीने के बाद। 9 to 14 केवल आज और एक 6 महीने बाद, और 14 to 16, 26 के बीच में 3 डोजेज हैं। थोड़ा मैंने गलत कम कर सकती है। तो कुछ कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज में इसको दिया गया तो वहां पे जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस थे वो काफी कम हो गए हैं। अच्छा, अब ये हो सकता पूछेंगे जो बॉयज बैठे हैं कि क्या हम भी ले सकते हैं इस वैक्सीन को? यस, बॉयज कैन आल्सो टेक दिस वैक्सीन, क्योंकि एचपीवी वैक्सीन सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से ही जुड़ा हुआ नहीं है, इसके अलावा 9 टाइप ऑफ कैंसर से ये रिलेटेड है। तो अगर बॉयज भी इस वैक्सीन को लेते हैं तो वो उन कैंसर से बच सकते हैं। तो ये बॉयज और गर्ल्स दोनों को दे सकते हैं। और गार्डेसिल 9 एंड सर्वाइकल एंड लाइसेंस फॉर मेल आल्सो। अच्छा, अब ये पूछ सकते हैं कि इसको और हम कोई और भी वैक्सीन ले रहे हैं, फ्लू का वैक्सीन ले रहे हैं या कोई और वैक्सीन ले रहे हैं, तो उसके साथ दे सकते हैं? यस, उसके साथ दे सकते हैं। टीटी, टीडैप या इवन कोविड वैक्सीन के साथ भी इसको दे सकते हैं, सिर्फ साइट अलग अलग होना चाहिए। कोई टेस्टिंग जरूरी नहीं है, जैसे पैच टेस्ट करते हैं या इंजेक्शन का किसी का टेस्ट करते हैं तो टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट आप इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। तो डज इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी अदर कैंसर? यस। तो ये और कौन कौन से कैंसर से बचाती है? सर्वाइकल कैंसर से 100%, वेजाइनल कैंसर से 70%, वल्वर कैंसर से 43%, जेनाइटल वार्ड से
100%, एनल कैंसर से 88%, ओरोफेरेंजियल कैंसर से 30 to 56% एंड पेनाइल कैंसर से 50% प्रोटेक्शन है। तो मेल्स में भी काफी कैंसर है जो मेल्स में कॉमन है, इसमें मेल्स में पाए जाते हैं। तो वो अगर एचपीवी वैक्सीन लेते हैं बॉयज तो वो इस वैक्सीन से खुद को बचा सकते हैं। ये हम बात हो गई कि हाँ, और वैक्सीन डीपीटी, मेनिंजोकोकल, ये सब वैक्सीन के साथ हम इसको दे सकते हैं, बस दोनों वैक्सीन को मिक्स नहीं करना है। और किन किन स्टेट्स में ये वैक्सीनेशन चालू हो गया? पंजाब में, सिक्किम में और दिल्ली में। इनमें बहुत अच्छे से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो हमें अपने उत्तराखंड को भी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में काफी आगे लाना है। तो ये सीतारमण जी जो हमारी हेल्थ वो है वित्त मंत्री हैं, ये भी इन्होंने भी इसमें पार्लियामेंट में दिया था कि सभी गर्ल्स को जो है वो चाहती है कि ऑल गर्ल्स शुड बी वैक्सीनेटेड, और इसके लिए गवर्नमेंट फंड्स भी जो है वो देना चाह रही है कि फंड इसका बहुत जल्दी इसका फंड्स रिलीज हो जाएगा, तो ये गवर्नमेंट सेंटर्स पे भी फ्रीली अवेलेबल हो पाएगी। अभी तक तो ये उस पर है और परचेज पर है ये, तो ये और स्टेट्स में ये लागू हुआ है। तो एचपी वैक्सीनेशन हम क्या फैक्ट्स जाने हमने कि इट इज इफेक्टिव, इट इज सेफ एंड इट स्टार्ट एट द एज ऑफ 9 एंड ऑब्वियसली हम रिकमेंड करेंगे तो पेशेंट्स को या पब्लिक को इसका बारे में पता चलेगा। तो गर्भाशय की ग्रीवा की कैंसर से अपनी बेटी को बचाएं, आज ही टीकाकरण करवाएं। तो ये सब आपको अपने पेरेंट्स को भी जाके बताना है कि हमें ये वैक्सीन लगवाएं, या जो छोटी बहनें हैं जिनके भी एज 9 से 14 इयर्स की एज है तो उनको ये कैंसर से बचाव के लिए इस वैक्सीन को लगाएं। अब ये तो हो गया प्रिवेंशन। अब जो सेकेंड पार्ट है दैट इज स्क्रीनिंग, जो आपके घर में जो एल्डर लेडीज हैं उनके लिए है। तो आप उनको बता सकते हैं कि ये जब भी एचपी वैक्सीनेशन अगर हुआ तो अंदर परसिस्टेंस रहती काफी टाइम तक, उसके बाद ये सीआईएन में सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया में कन्वर्ट होता है और लेटर ऑन जाके कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो इससे बचाव के लिए हम 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे पैप्समियर टेस्ट होता है, एक एचपीवी डीएनए टेस्ट होता है और एक वाया टेस्ट होता है। तो इन तीनों टेस्ट से हम इसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो 30 ईयर से ऊपर की सभी महिलाओं को हर 3 साल में पैप्समियर टेस्ट कराना चाहिए, और एचपीवी डीएनए टेस्ट अगर करा रहे हैं तो वो हर 5 साल में करा सकते हैं। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की पिक्चर है। इसके मेनली स्ट्रेन्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन स्ट्रेन है वो एचपीवी 16 और 18 स्ट्रेन है। जो सर्वावैक वैक्सीन अभी आई है वो 16, 18, 31 और 45 इन स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि और उसको भी बचाती है। ओरोफेरेंजियल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, वार्ड्स, इन सब कैंसर से बचाती है। तो अधिकतर महिलाओं में ये कैंसर होता है, लेकिन जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, खांसी जुकाम हो गया, अपने आप चला जाता है, तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। तो लगभग 80-90% लेडीज में वैसे ही ठीक हो जाता है। लेकिन जो 10 to 20% में ये रह गया है उनके लिए ये स्क्रीनिंग और ये चेकअप रेगुलर जरूरी है। तो ये देखिए चेंजेस कैसे होते हैं। सेल्स, ये नॉर्मल सेल है, अगर ये अंदर चला गया धीरे धीरे सेल्स में चेंज होकर के ये, और लगभग सिर्फ 0.8% में प्रॉपर फुल फ्लैश कैंसर डेवलप हो जाता है। अगर एचपीवी टेस्ट कराया वो नेगेटिव आया है तो उसकी बड़ी हाईली प्रेडिक्टिव वैल्यू है। तो आप यू कैन रिलेट कि ऑल इज वेल, तो यू कैन स्लीप वेल कि हाँ कैंसर नहीं है और जल्दी होने के चांसेस भी नहीं है। अगर आपका जो टेस्ट नेगेटिव आता है तो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 years यू आर सेफ। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एचपीवी डीएनए टेस्ट। तो पैप्समियर 25 से 65 साल की महिलाओं में 3 साल में कराएंगे, और एचपीवी टेस्ट 30 से 35। कैसे करते हैं पैप टेस्ट? ये सर्विक्स का जो दिख रहा है ना, सर्विक्स की फोटो दिख रही है, तो एक ब्रश लेकर के जस्ट एक ब्रश से एक लाइनिंग लेते हैं और उसको एक स्लाइड पे लगा करके उसको जांच के लिए भेज दी जाती है। तो ये कोई पेनफुल नहीं होता है, कोई ट्रॉमेटिक नहीं होता है, बड़ा सिंपल टेस्ट है। तो इसको टेस्ट कराने से कोई भी खतरा नहीं है और ना ही कोई डर की बात है। ये वाया है जो एसिटिक एसिड को डाइल्यूट करके इससे विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, इसमें भी चेंजेस आते हैं, ये टेस्ट करा सकते हैं। ये सिन में चेंजेस आ रहे हैं, सेल्स कैसे डार्क न्यूक्लिएटेड सेल्स हो गई हैं, स्ट्रेनिंग डार्क हो गई है। ये फोटोग्राफ्स है, एसिटिक एसिड से टेस्ट कर सकते हैं। प्री कैंसर कैसी अगर फोटो आती है, अगर इस तरह से देखते हैं तो इस तरह से सर्विस का कलर चेंज हो जाता है, पैचेस से दिखने लगते हैं। तो एचपीवी टेस्ट के लिए भी सेल्स उसी तरह से लेते हैं, मीडियम में टेस्ट करते हैं और एचपीवी वायरस की टेस्टिंग होती है, और ये हाईली सेंसिटिव टेस्ट है। इसकी अगर आ गया है पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा। एक सेल्फ सैंपल्ड एचपीवी टेस्ट का भी WHO एडवोकेट कर रहा है, बट वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसमें सेल्फ खुद भी ले सकते हैं इस टेस्ट को। तो कब टेस्ट करानी है? जब आप स्वस्थ हो। ये नहीं कि जब आप बीमार हो गए तब आप टेस्ट कराने जाएंगे तो तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो व्हेन यू आर हेल्दी गो फॉर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग।
अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कोल्पोस्कोपी जांच होती है, इस कोल्पोस्कोपी जांच करके आगे ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं सर्वाइकल कैंसर? ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, जो कम से कम 13 कैंसर्स का कारण होता है। तो वही असुरक्षित यौन संबंध, अगर आप प्रोटेक्शन के बिना सेक्सुअल रिलेशन में है या बहुत कम उम्र में गर्भ धारण कर रहे हैं, प्रेगनेंसी बहुत अर्ली एज में हो रही है, बार बार प्रेगनेंसी हो रही है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो रही हैं, या फिर आपको और एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, या आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर है, तो ये कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा ओरोफैरिंजियल कैंसर, एनल कैंसर, ये सब भी इसी की वजह से होते हैं। तो मेल्स के अंदर भी ये कैंसर जो है काफी कैंसर कर सकता है। तो सिम्टम्स क्या है सर्वाइकल कैंसर के? अगर किसी महिला को कैसे पता चलेगा कि मुझे सर्वाइकल कैंसर होने वाला है या हो रहा है? कभी भी अनयूजुअल हैवी प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही है, या पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, या पेट में नीचे के हिस्से में लगातार दर्द है उनको, या फिर एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज है, वो भी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज अगर हो रहा है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनफुल है, या रिलेशंस बनाने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सभी सिम्टम्स जो है बताते हैं सर्वाइकल कैंसर हो रहा है या होने वाला है। तो यही राइट इस टाइम पे तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए अगर किसी महिला को ऐसा है। एब्नॉर्मल ब्लीडिंग है, डिस्कम्फर्ट है, अगर आप यूरिनेट करते हुए बाथरूम यूरिन पास करते हुए डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या ब्लैडर कंट्रोल नहीं हो रहा है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, या बहुत थकावट लग रही है, लगातार वीकनेस आ रही है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है ना, या वेट लॉस हो रहा है, अचानक वेट लॉस हो रहा है अनएक्सप्लेन्ड है जो कि, या लेग्स में पेन हो रहा है, तो ये सब भी जो है आपका वार्निंग साइंस है सर्वाइकल कैंसर की। अगर सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस हो भी जाता है, जैसे अभी अवेयरनेस नहीं थी, अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लेकिन जब तक पहुंचे पता चला सर्वाइकल कैंसर हो गया है, तो भी उससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, फैमिली का सपोर्ट भी लेना है, साथ में फैमिली को भी सपोर्ट करना है। और जो ऑप्शंस है ट्रीटमेंट के, फिर वो साइज ऑफ ट्यूमर पे डिपेंड करते हैं कि क्या ट्यूमर का साइज है, कितना कैंसर फैल चुका है, तो उस टाइम पर आपको सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी, इन सब ट्रीटमेंट से या इनके कॉम्बिनेशन से ट्रीटमेंट हो सकता है। तो कभी भी कोई कैंसर अगर होता है तो उसके लिए हिम्मत भी नहीं हारनी है, और ये नहीं सोचना है कि अब जिंदगी खत्म हो गई है। कोई भी बीमारी अपने हौसले से और बलबूते से आराम से लड़ी जा सकती है। तो आप उसको जो है, अगर कुछ भी डायग्नोस होता है तो उसको हमेशा अपने जो है फैमिली को सपोर्ट करना है और उनको उस लड़ाई को लड़ने में हेल्प करनी है। तो we can end cervical cancer by using these methods: prevention by giving vaccination, screening से we can diagnose early, and by giving the treatment if already cancer has been developed. So we can end cervical cancer by get informed, get screened, and get vaccinated. Thank you. A heartfelt thank you to Dr. on HPV vaccine have been truly enlightening. Understanding the risk factors, early signs and preventive measures is crucial in the fight against these diseases. And Dr. Garg has done an incredible job in simplifying this important information for us. Let's give Dr. Sangeeta Garg another big round of applause for her contribution. Now, I would like to call upon Vice Chancellor Sir Dr. Dharamveer Singh, Principal of Nursing Department Dr. Sonia Sharma, Head of Department Dr. Rohit, and Associate Professor Mr. Vishal Balyan to kindly come on the stage for the felicitation. लाइफस्टाइल से, गुड डाइट से, रेगुलर अपना जो स्लीप जो हमारा पैटर्न है उसको सही करके, और जिन जिन की वैक्सीन्स अवेलेबल है उन वैक्सीन्स को लगा सके। तो आई थिंक वी शुड ऑल टेक ए प्लेस कि हम जो है इसको मिल करके इसे लड़ेंगे और इसको अपने देश से दूर भगा के रहेंगे कैंसर को। ऑलमोस्ट ऑल कैंसर्स आर क्यूरेबल इफ वी लीड ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। थैंक यू। Now, I would like to call upon Dr. Tanav Shamim to kindly come on the stage, and our Vice Chancellor Sir to kindly felicitate him.
Dr. Mohammad Talha Shahin holds an MBBS and MD in his professional journey, including serving as a senior resident in the Department of Surgery. Welcoming Dr. Mohammad Shahin with a big round of applause. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई थिंक हम पहले भी मिल चुके हैं शायद। वेरी गुड। प्लीज कैन यू कम इन फ्रंट सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू इंटरेक्ट इजी। जो लोग पीछे थोड़ा सा आगे आ जाइए, जस्ट फिल अप दीस गैप्स। सर्दी भी कम लगेगी, है ना? एंड वी नो दैट टुडे इज वर्ल्ड कैंसर डे एंड वी हैव टू डिस्कस समथिंग अबाउट द problems related to cancer. Which problems we are dealing with? Psychological, okay? ठीक है? तो let's start. Okay. So आपसे एक सवाल पूछना है, and it is written on the board. Can cancer cause mental health issues? पक्का? कैसे? फंस गए। हेलो। क्रॉनिक इलनेस है तो डिप्रेशन हो जाएगा। वेरी गुड। एंड एंजाइटी होगी। ऑल राइट। एंड ट्रॉमा। सिर्फ लड़कियों की आवाज आ रही है, लड़कों को भी हो जाता है कभी कभी कैंसर। सुन लो गौर। ठीक। चलिए संगीता मैम आई होंगी तो ब्रेस्ट और सर्वाइकल जरा डिस्कस हुआ होगा। द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑन द वर्ल्ड इज लंग कैंसर। किसको होता है? मेल्स को। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से जरूर। ओके। सो फीमेल्स में सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट। ओके। तो कुछ सुनाई दिया आप लोगों को? कैंसर इज कैन कॉज मेंटल हेल्थ इश्यूज। पहले तो कैंसर होना ही इतनी बड़ी बात है, उसके बाद ऊपर से सोने पे सुहागा, मेंटल हेल्थ भी खराब हो गई, तो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है? ओके, नेक्स्ट। ऑलराइट। कैन पुअर मेंटल हेल्थ कॉज कैंसर? किसी का दिमागी संतुलन सही नहीं है तो उसको कैंसर हो सकता है। गुड। और दूसरा आंसर ऐसे हो सकता है। तो नो के फेवर में कितने हैं? नो के फेवर में काफी है। नहीं, पीछे वाले दो। ठीक। यस के फेवर में कितने हैं? ठीक है। तो आप मुझे बताइए, यस क्यों है, नो क्यों है? आप बता देंगे? किसी के दिमाग में कुछ तो स्ट्राइक किया होगा। कम है ज्यादा है या फिर नॉर्मल है कि यहाँ पॉपुलेशन ठीक है, जैसे औरों को होता है ऐसे इनको हो सकता है। इवन फैकल्टी कैन पार्टिसिपेट। कोई रिलेशन नहीं है। ओके। यानी फैकल्टी कोई भी आपको बोलिए पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्या मेंटल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मेंटल हेल्थ इशू वाले को कैंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो तो सकता ही है, चांसेस प्रोबेबली ज्यादा है, कम है, उतनी है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। श्योर। तो सब साइकियाट्रिस्ट को ऑन्कोलॉजिस्ट भी बन जाना चाहिए, है ना? चलो नेक्स्ट। इट कैन बी यस। ठीक है, सुनो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? सिंपल सा कंसेप्ट में बता देता हूं। When you are having some mental health issues, fine, any mental health issue, उसको डील करने के लिए what we do, साइकियाट्रिस्ट के पास हो जाएंगे, ये तो जनरल है ना, कोई नहीं जाता। ठीक है, क्या करते हैं लड़के? क्या करते हैं? यस, तो स्मोक करेंगे। फिर अब तो लड़कियां भी करती हैं, लड़कों की भी चॉइस होती है। ठीक है, स्मोक करते हैं और ड्रिंक करेंगे एंड कैनबिस, स्मैक, हेरोइन, चरस, भांग, गांजा, अफीम, सब कुछ लिया जाएगा। ऑलराइट, फाइन। तो जब आप इतने सारे सब्सटेंस लेंगे तो जाहिर सी बात है हार्मफुल सब्सटेंसेस विल आल्सो
come inside the body. Apart from ऐसा नहीं है, देखो ये जितने भी substance use हैं, they somewhat have a calming effect on the brain. तभी तो ले रहा है इंसान, है ना? But that calming effect at the result of cancer, this is something not rational at all, है ना? आप समझ रहे हैं बात को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे साइकियाट्रिक पेशेंट्स हैं, 99% मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, ऑल ऑफ देम स्मोक. ठीक है, मैक्सिमम ऑफ देम. शायद ही कोई होगा एक आध जो स्मोक नहीं करता होगा, इररिस्पेक्टिव कि कहाँ से बिलोंग करता है, किस कम्युनिटी से है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है. स्मोक के बाद नेक्स्ट कॉमन सब्सटेंस कैनबिस. ठीक है, भांग, गांजा, चरस, जो आप समझ रहे हैं उसे कैनबिस कहते हैं हम लोग. वो लोग लेते हैं, वो भी इनहेल करते हैं हम लोग, है ना, टोबैको लीफ में डाल के एंड देन वी इनहेल इट. But that also has a very high propensity for causing lung cancer, apart from other cancers altogether. Simple सा concept है, जहाँ आपने सिगरेट लगाई और जहाँ से आपका यूरिन निकला, हर जगह का कैंसर आपका स्मोकिंग से होता है. प्रूवन फैक्ट. ठीक है, सिर्फ मुंह का नहीं होता, आपके फोटो में मुंह का दिखाते हैं कुछ. तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ओरल कैविटी टिल द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर भी इसी से होता है. ठीक है, तो डराने की बात नहीं है, जस्ट टू अवेयरनेस के लिए है. तो छोटे से मजे के लिए हम लोग अपनी जिंदगी ना बर्बाद करें. ठीक है. सेकंड पॉइंट, स्ट्रेस जितना भी होगा इंसान के ज्यादा दिमाग, जितना भी स्ट्रेस इंसान लेगा, the probability of inflammation is high in the body. ये थोड़ी टाइम सीखे तो वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, सूजन हो जाती है ना, है ना, और जलन भी होती है, दर्द भी होता है, घाव बन जाता है. तो दैट इज कॉजेज इन्फ्लेमेशन. ये पूरी रिएक्शन को हम लोग इन्फ्लेमेशन कहते हैं. जो आपकी चोट लगने से हो रही है, ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है. आप समझ रहे हैं? तो जब आपके अंदर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस हो रहा है ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, तो ये देखा गया है कि मोर द इन्फ्लेमेशन, मोर द चांसेस ऑफ अ पर्सन कैन हैव कैंसर. ठीक है, क्यों? और टेक्निकल आगे जाएंगे तो बहुत डिटेल बढ़ जाएगी. जितना ज्यादा हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन होगा उतना ही हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा. एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल जो होता है, कॉर्टिसोल इज रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड. पैरामेडिक्स मेडिकल वाले समझ जाएंगे. तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है दैट कॉर्टिसोल raises the blood sugar levels and it can cause various inflammatory reaction again, and where inflammation itself is a cause for cancer. आप समझ गए? तो yes, इसमें हम आ रहे थे why it is yes. तो अगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू है, the person can have cancer. Chances are probably more. Okay, next. Now these data, it has been seen that 1 out of 3 people who are treated from cancer can have mental health issues. So that's a very high probability. कुछ लोग 50% तक कहते हैं, कुछ 30% तक कहते हैं, कुछ 60% तक स्टडीज भी कहती हैं. इतना हाई प्रोबेबिलिटी है किसी को कैंसर है तो मेंटल हेल्थ इश्यूज के. ठीक है. 24% ऑफ पीपल कैन हैव डिप्रेशन ऑल्सो. एक बात बहुत ध्यान से रखिए कि एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये सब अलग अलग चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है इनमें. मेंटल हेल्थ इश्यूज कहते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन आता है, ये पूरा एक डिसऑर्डर है स्पेक्ट्रम का. ठीक है. जब आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो यू विल एबल टू डिफरेंशिएट. ये सब कुछ एक नहीं होता. सारे मेंटल हेल्थ पेशेंट पागल नहीं होते, प्लीज इस चीज को दिमाग में निकाल दीजिए. ठीक है. और सारे मेंटल हेल्थ पेशेंट कमजोर नहीं होते. यार तो कमजोर है, तो ऐसे ही है, पागल है, टेंशन लेने की बात होती है. सम थिंग्स हमारे अंदर नहीं होती. वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट हेल्प. दैट्स व्हाई 3 साल की एमडी इसी फील्ड में हो रही है, कुछ सोच समझ के बनाई है ना. दिस मीन्स दिस इज समथिंग वी हैव टू लुक आफ्टर. नेक्स्ट. तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमने बता दिया था. तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को डायग्नोस होता है, जनरली उनको देखा गया है दे हैव ओवर ईटिंग हैबिट्स. भूख बहुत कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है.
they cut back their exercise, they withdraw from the family, they have difficulty in sleep, and they also indulge smoking, using alcohol and the drugs. तो मैं इस पे आ गया था कि breast cancer हुआ आपको, the woman is very stressed, and to counter that stress, what is she doing? She is indulging in substance abuse. तो उसकी वजह से और ज़्यादा issues बढ़ जाएंगे, है ना? Okay, next. So ये देखा गया है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स, 56% ऑफ द कैंसर पेशेंट्स दे आर नॉट अवेयर कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे. दैट्स वेरी हाई नंबर. साथ के साथ ये देखा गया है कि वो तो खुद परेशान है, साथ के साथ केयरगिवर्स आर आल्सो हैविंग वेरी सीवियर एंजाइटी. अगर किसी के फैमिली में किसी को कैंसर हो जाता है, उसके फैमिली मेंबर्स को देखा गया है कि 50% ऑफ द फैमिली मेंबर्स विल देमसेल्व्स हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज. दैट्स अ ह्यूज नंबर, है ना? नेक्स्ट. So, एक स्टडी ने बताया गया कि अगर किसी को पहले से मेंटल इलनेस है, ठीक है, और नाउ उसको कैंसर हो जाता है, तो कैंसर की प्रोग्नोसिस और खराब होती चली जाती है. प्रोग्नोसिस समझते हैं आप? प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि ठीक होने के चांस. ओके, सो कहीं ना कहीं जहां भी मेंटल हेल्थ इशू जुड़ जाएगा ना, आप एक जनरल विक्टिम याद रखिए, वहां पे प्रोग्नोसिस पुअर होती चली जाएगी पेशेंट में. तो मेंटली हेल्थ यू शुड बी, पर्सन शुड बी मेंटली वेरी हेल्दी, साउंड एंड हेल्दी, सो दैट उसकी जो आगे की प्रोबेबिलिटी है ठीक होने की वो बढ़ जाए. नेक्स्ट, क्या क्या हो सकता है? इंक्रीज एंजाइटी एंड फियर ऑफ रिकरेंस. आप समझ रहे हैं? एंजाइटी हुई, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है आदमी, और क्या होता है कि अगर बाय चांस में ठीक भी हो गया तो कहीं दोबारा भी हो सकता है ना कैंसर. तो ये चीज बार बार बहुत ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करती है. डिप्रेशन एंड फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, ठीक है, सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस हो जाएगा, लॉस ऑफ कंट्रोल एंड आइडेंटिटी एंड बॉडी इमेज एंड सेल्फ एस्टीम इश्यूज. ये सारी चीजें जब एक साथ हो जाती है तो जाहिर सी बात है किसी को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे. नेक्स्ट, ओके, it has been seen, थोड़ा स्लाइड को एक मिनट, 60% of those in distress were not referred to a mental health profession by their cancer care team. ये वेस्ट की स्टडीज हैं. आप सोचो इंडिया में कितना बुरा हाल होगा कि 60% ऑफ पेशेंट्स जिनको वाकई में मेंटल हेल्थ इशू थे, they were not referred to a mental health establishment. तो आप देख सकते हैं कि उनकी प्रोग्नोसिस कितनी पुअर हो जाएगी, है ना? And 20% who wanted mental health support did not receive it. उनको मिली भी नहीं. जो लोग गए उनमें से बहुत सारों को मिली भी नहीं. तो एक तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, फिर सेकंड अगर आइडेंटिफिकेशन भी हो गया तो हम लोग कितना उनको हेल्प कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. नेक्स्ट, तो ये किसी को अगर कैंसर हो जाता है बाय चांस, तो उसको क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसके दिमाग में? विल द कैंसर कम बैक? Will I be able to go back to work? Will I be able to take care of my family? Will I be able to pay my medical bills? बहुत expensive है medicines कैंसर की, बहुत ज़्यादा, very very expensive. ये तो अगर हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इसको नहीं करें तो समझिए 50,000 to 1 लाख रुपीस का एक इंजेक्शन आता है. सोचो कितनी कीमो लगते होंगे. That's out of proportion. अच्छे जो कीमो हैं वो तो बहुत एक्सपेंसिव हैं. हमारे इंडिया में जो कीमो यूज होते हैं वो बहुत ही सस्ते यूज होते हैं, दे नॉट अनफॉर्चुनेटली उनकी क्वालिटी और साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं. वेस्ट में सबसे अच्छी बात है कि दैट एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर इंश्योरेंस. दैट्स द सैड फेट ऑफ अफेयर इन आवर कंट्री. तो नेक्स्ट, एक स्टडी बड़ी अच्छी हुई थी, उन्होंने ये बताया था कि किसी को अगर बच्चे को चाइल्डहुड में अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके मेंटल हेल्थ और आगे चल के उसके कैंसर के रिस्क पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप बताओ. चलो, क्या पूछा मैंने? सो गए तो अगर कोई बच्चा कैंसर सर्वाइवर है, is he at a higher risk of developing a mental health issues in adults or not? Yes, ठीक है. Okay, so this is something very alarming. It has been seen that 34% chances are higher. Well, the chance that an adult survivor of childhood cancer will seek mental health from a family doctor or psychiatrist compared to his or her peers. ठीक है.
13% are higher chance that an adult survivor of childhood cancer will experience severe mental health event. So this is very alarming. बच्चों में भी कैंसर होता है, पता है ना? ब्लड कैंसर, ल्यूकीमियास कहते हैं उनको, वेरी कॉमन. लिम्फोमास, ल्यूकीमियास बड़ा कॉमन है. इंडिया में तो सर्वाइवल इज वेरी लेस. In the West, when the medicines are very effective, survival is very high. तो उसके वजह से जो सर्वाइव भी कर रहे हैं उनको मेंटल हेल्थ इशू बहुत ज्यादा हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. क्यों? वो मैंने बताया ना पहले, रिकरेंस, बार बार रिकर तो नहीं हो जाएगा, स्ट्रेस बहुत रहता है बच्चों को. नेक्स्ट, प्रोस्टेट कैंसर इन मेन. यू नो प्रोस्टेट क्या होता है ना? One of the most common cancer in men is prostate after lung cancer. Okay? उनमें भी जो स्टडी हुई थी पता है लगाया था कि उनको भी 40% of prostate cancer patient had a very severe mental health issues. आप एक चीज पर ध्यान रखो, prostate cancer is one of the cancer which has a very good prognosis. बहुत जल्दी ठीक हो जाता है. लिटरली आपने दवाई दी और अगले दिन पेशेंट बिल्कुल बढ़िया. उसके बाद भी आप देखो कितना ज्यादा हाई वो है. That means इस कुछ तो अलग है. ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि the patient cannot have a mental health issue. Something is related. Next. So मुझे आगे बच्चे पैदा करने चाहिए या नहीं, तो ये काउंसलिंग करनी पड़ती है. ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग, क्योंकि मेरे बच्चों को भी तो हो सकता है ना. तो genetic counseling is very important. Fear of cancer coming back, is either she normal or not, sense of well-being, coping with grief and loss, social isolation बहुत हो जाता है. एक तो वहाँ पे वैसे ही बच्चों की the population is very less. जब आप कैंसर हो जाता है आपको तो फिर you start isolating yourself और आपके फ्रेंड्स भी कई बार आइसोलेट हो जाते हैं. This is very normal, very natural. So isolation is itself is one of the cause of mental health problems or can eventually lead to suicide also. Isolation is very bad. आप समझ रहे हो ना? किसको अकेला रहना पसंद है? सभी को अकेला रहना पसंद है. ठीक है, चलो अगर आपको अकेला रख दिया जाए कमरे में कई महीनों तक, वो कैसा रहेगा? विदाउट इंटरनेट. और आपको एक आ जाए कि अगले 9 महीने हैं बस आपके पास जिंदगी के, अब बताओ अब रह लोगे कि नहीं? नेटफ्लिक्स मिल जाएगा बस रह लोगे नहीं, तो शायद नहीं. खाली तो आइसोलेशन इज वेरी बैड. हम चाहे कितना भी अलग रहना चाहें, हमें कहीं ना कहीं फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेंबर्स की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है. दैट इज वेरी नेचुरल, ये होता ही है. इवन जानवर भी बाप में कपल बना के रह लेते हैं, उनको भी इतने अकेले के अकेले नहीं रह सकते हम लोग, है ना. दिस इज अ वेरी एनिमल इंस्टिंक्ट. खाली है 44, पता नहीं 5 लड़के आए थे, वो कहाँ बैठे होंगे, लेकिन खाली है फिलहाल तो. कल बैठा. सो एक जनरल बात याद कर लीजिए, कहीं भी क्रोनिक डिजीज कोई भी हुई, क्रोनिक डिजीज समझते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, HIV जो भी है, नहीं सब बड़ी बड़ी क्रोनिक डिजीज में आता है. उनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज होने ही होने कहीं ना कहीं. ओके, अब वाइस वर्सा है, अगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू है तो उसे क्रोनिक इलनेस हो सकती है. आर देयर चांसेस? है ना. कैंसर इज ऑल्सो क्रोनिक इलनेस. मैंने आपको बताया ना, इन्फ्लेमेशन जहां भी होगा बॉडी में, सपोज पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन समझ रहे हैं आप लोग, बताया था. पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होगा तो डायबिटीज हो जाएगी, है ना. ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गया, है ना. आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा? हाइपरटेंशन. समझ रहे हैं. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हमें यही बताया गया था इसमें कि क्रोनिक डिजीज कैन लीड टू डिप्रेशन, क्रोनिक डिप्रेशन कैन लीड टू क्रोनिक डिजीज. ठीक है. सो ये भी हो गया हमारा. ओके फाइन. अब आते हैं कि हाउ टू डील विद इट, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं ये आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कैंसर होने का इंतजार करो आप. ठीक है.
तो हैविंग अ फन विद अ पेट, पेट पसंद है सबको? कौन से वाले? डायनासोर। ये बढ़िया था। सो ये देखा गया है, एक्चुअली ये वेस्टर्न स्टडीज थी कि वहाँ जनरली क्या होता है, बच्चों को आफ्टर देयर कंप्लीट देयर स्कूलिंग घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, बच्चे अलग रह रहे हैं, पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, सब अलग अलग रह रहे हैं, रहेगा कौन किसके साथ? तो जनरली वहाँ देखा गया है कि वहाँ के लोग ऑलमोस्ट एवरी हाउस एज अ पेट, पेट से कहीं ना कहीं बिलोंगिंग, वो सेल्फ जो है आपका अटैचमेंट तो काफी हो जाता है। तो समहाउ जो लोनलीनेस वाला पार्ट है ना, वो डील हो जाता है पेट से। तो पेट एट टाइम्स इट हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, ईट अ बैलेंस डाइट, बताइए सबको। इंडियन फूड इज अ बैलेंस डाइट, ये समझ लो आप। बैलेंस डाइट क्या होती है, बस समझ लो आप। जो भी हम बाहर जाके खा रहे हैं, मैकडी, Starbucks, Pizza Hut, this is not comes in the balance diet, unfortunately. Why? Because of high content of carbs, refined carbs. ठीक है, Indian food by default is a balanced diet. समझ लो आप, आपको इंडियन फूड यहाँ मिल रहा है, आपको कुछ अलग से बैलेंस डाइट ये फलाना डालने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो बैलेंस डाइट का कंसेप्ट आया ही वैसे ही है, क्योंकि उनका बैलेंस है। उनके क्या करेंगे, मीट का इतना बड़ा टुकड़ा लेंगे और उसे खाना शुरू कर देंगे। हम क्या करते हैं, रोटी भी होती है, सब्जी भी होती है, सलाद भी होती है, सब कुछ होता है। तो दे डोंट हैव कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, वी हैव। ओके, मेक टाइम फॉर योर हॉबी। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, मोबाइल सर्फिंग, इंटरनेट सर्फिंग इज नॉट अ हॉबी। प्लीज इसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। ठीक है, हॉबी वाकई में जो हॉबी हुआ करती थी, वो हमारे टाइम से पूछो आप कि हॉबीज क्या होती थी। ठीक है, आई लव टू वॉच नेटफ्लिक्स, आई लव टू वॉच इंस्टा, मुझे रील्स शॉर्ट्स घुमाने में मजा आता है, इंजॉयमेंट होता है, दैट इज माई हॉबी। अंदर से सब जानते हैं, इसको नहीं कर सकते। हॉबी क्या होता है, आप इंस्टा कितनी देर चला लोगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है, मैक्सिमम कितना चला लोगे। कभी कभी ना तो बोर हो ही जाओगे या नहीं होगे, कंटिन्यू पूरे दिन 24 आवर्स। चलो 24 आवर्स चला लिया, उसके बाद भी स्टार्ट हो जाएगा। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरी हॉबी है ट्रैवलिंग। I can travel for 2 days, 3 days, 5 days, 7 days, लेकिन मैं इंस्टा 7 days नहीं चला सकता कंटिन्यू, है ना। आप इसको ऐसे समझो। Why? Because all the जितने भी हमारे ये सोशल मीडिया है, they work very well with our biology। कैसे? डोपामिन का नाम सुना होगा आपने। जैसे ही आपको ये नई रील देखते हो, आपको डोपामिन हिट होता है एकदम से, फिर अगली फिर हिट होगा, हिट होगा, हिट होगा। एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन कम्स, यू डोंट फील एंजॉयमेंट आफ्टर दैट। ठीक है, सपोज मैं अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रख रहा हूँ, कुछ देर तक तो उसे लगेगा, उसके बाद यू वोंट फील एनीथिंग, उसे लगेगा दैट इज नॉर्मल, बिकॉज द बॉडी हैज अडैप्टेड टू दैट प्रेशर एंड टच। सेम गोज टू द ब्रेन। ओके, एक्सरसाइज कोई भी नहीं करता हम में से, ठीक है। स्पोर्ट्स खेलने हमने सबने बंद कर दिए, है ना। जब कोई स्पोर्ट्स होगा तो कोई इवेंट होगा तभी जाएंगे। इट इज नॉट कमिंग इन आवर डेली रूटीन, अनफॉर्चुनेटली। डेली रूटीन में आना चाहिए, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेट तो भूल ही जाओ, कोई करता ही नहीं। कौन कर रहा है, इतने में तो 10 रील देख लेंगे, तो मेडिटेशन तो होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, मैं थोड़ी सी एक्टिविटी कराना चाहूंगा आपको, इफ वी हैव टाइम। ठीक है, लिसन टू म्यूजिक, ये तो सब हम करते हैं, ठीक है। चलो दैट्स नाइस। तो ये सारे हमारे फीचर्स हैं, हाउ टू कोप अप विद द स्ट्रेस। प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस इन योर रूटीन एक्टिविटीज। क्यों? कैंसर होगा तो मेंटल हेल्थ इश्यू हो जाएंगे, और मेंटल हेल्थ इश्यू होगा तो जनरली देखा गया है कि जब बहुत लेट फेज हो जाता है ना लाइफ में, जब उसे सफाई नहीं कर पाती, वो कर पाता, तब वो आते हैं हमारे पास कि सर अब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, मेरे तो टांगों में तो घुटनों में आर्थराइटिस हो गया है,
मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ, मुझसे सफाई नहीं हो पा रही है, नाउ आई नीड हेल्प। ठीक। दूसरा, या तो से घर वाले घसीट के लेके आते हैं, सर हमारा जीना हराम हो गया है, चप्पल ना लेके आओ, हाथ ना धो, ये ना हाथ धो के आओ, अभी हाथ धोए यहीं टच हुआ था फिर हाथ धो के आओ, पापा ने तो परेशान कर दिया, ये मम्मी ने तो जीना हराम कर दिया हम लोगों को। ठीक है। नाउ ओसीडी का एग्जांपल इसे दे रहा हूँ क्योंकि मिलेंगे तुम्हें, अपने हॉस्टल में चेक कर लेना। ठीक। चलो नेक्स्ट। ओके फाइन, थोड़ी सी एक्टिविटी कर लें। हाँ ऑलरेडी माइंडफुल हो रहे हैं, सब सो रहे हैं। ठीक है। कौन करेगा? है ना, वो तो मुझे पता ही है मैं कैसे कोप अप करना है ना। सो डॉक्टर भी बीमार पड़ सकता है ना। एक बार मुझे याद, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था रिसेंटली, तो मैं आई वाज सिटिंग लाइक दैट ऑन दिस डेस्क, अरे सर आप भी बीमार हो गए। दिस इज समथिंग वेरी फनी। सो करें मैम, टाइम है हमारे पास, एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, एवरीवन रेडी? कुछ नहीं करना है, बस सब लोग अपनी बैक आराम से चेयर पे लगा लें। ठीक है। एंड अपने जो हैंड है वो अपने थाइस के ऊपर रख दें। ठीक है। प्लीज मेंटेन साइलेंस, किसी से बात नहीं करनी है। ओके। कोट के बटन खोल लें सब। कोट, ये कोट पहनने का तरीका होता है, व्हेन यू आर स्टैंडिंग यू हैव टू बटन द कोट, व्हेन यू आर सिटिंग यू हैव टू ओपन द कोट। ठीक है। फाइन, नाउ यू कैन क्लोज योर आईज। आई थिंक आईज क्लोज कर लें। वेरी नाइस, एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज। ठीक है। Now gradually start feeling your breath. अपनी सांस पर ध्यान दें, सांस बहु वाली नहीं। सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर ले रहे हैं, सिर्फ इस पर ध्यान दें। ग्रेजुअली धीरे धीरे जस्ट फील योर ब्रेथ inside and outside. आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, बहुत सारी बातें चल रही होंगी, उनको आने दो, उनको रिएक्ट मत करो। लेट देम कम, वो आ रहे हैं आने दो। कुछ भी थॉट्स आ रही है दिमाग में, लेट देम कम, जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। सांस गहरी गहरी अंदर जा रही है, गहरी गहरी बाहर आ रही है। जो भी दिमाग में चल रहा है उसको चलने दो। ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर ब्रेथ। जा रही है, you can easily feel what's going inside and what's going outside. The breath can be easily felt. Now the next part, tips पर ध्यान दीजिए। Just feel your right hand on your thighs. Just feel the fingers, the thumb, the index finger, the middle finger, the ring finger, and the little finger. Just feel the 5 fingers of your hand resting on your thigh. It's very natural to yawn. It's okay. Gradually आप अपने आर्म्स पे फोकस करें, राइट आर्म पाम के ऊपर। फील करें अपनी एल्बो को। You have an elbow joint. Just feel it. Gradually
Go more upwards. Start feeling your right shoulder. You can feel the bulk of the muscle of your right shoulder. आपको महसूस होगा your right shoulder muscles. They are quite big, heavy. You can feel that. It's okay, it's okay. Concentrate. Gradually start feeling the most important part, your head. Okay? Let the thoughts come. आने दो thoughts को. Just focus on your forehead. अपने पेशानी पे, अपने सर पर, forehead पर focus करो. Gradually you will feel आपकी हार्ट रेट धीरे धीरे कम होती जा रही है. You can feel your heart very relaxed. Focus on your forehead. The forehead will seem. You will start feeling something is there inside your head. That is the brain. That is the most important part of your body. Now gradually shift your focus to the left shoulder. You can feel the heaviness, the warmth of the left shoulder. आप उस लेफ्ट शोल्डर के जो मसल मास है उसको आराम से फील कर सकते हो. Even you can feel the cloth above it. उसके ऊपर शर्ट, उसके ऊपर कोट आप फील कर सकते हो. The every breath of yours is making you more and more relaxed. The more and more breath you are taking, the more and more relaxed you are getting with time. Now gradually shift your focus to the elbow joint, the left wall. You can feel the joint very well. You can feel the clothes above it. Now gradually shift your focus to the left palm, which is resting on your thigh. You can feel the palm resting on your thigh. You can feel the thumb. Now you can feel the index finger, the middle finger, the ring finger, and the little finger. Just feel them, the softness of these fingers, the touch of the fingers, sensations of the fingers on the thighs. You can feel them very easily. Again, start focusing on your breath. Deep inside, deep breathe outside. With each breath of yours, you are more relaxed. आप महसूस करेंगे कि जितनी ब्रेथ होती जा रही है, बॉडी उतनी रिलैक्स हो रही है. Make sure आपकी बॉडी बिल्कुल ढीली हो जाए. Your hands should be very light, very feathery light. Your elbows should be very feathery light. Your shoulders उनको बिल्कुल feathery light कर दीजिए. Make sure with each breath of yours, you are getting more and more and more relaxed. The more you breathe, the more you relax you get. आपके thighs भी बहुत slowly रिलैक्स हो रहे हैं. आपके काफ मसल भी रिलैक्स हो रहे हैं.
With each breath of yours, the whole body is getting relaxed. Just focus on your toes. अपने पंजों पे पैरों पे ध्यान दीजिए. With each breath of yours, your toes are getting more relaxed. The body, the toes, everything is getting relaxed with each breath of yours. Whatever is coming in your mind, let it be. Just focus on your breath, inside, coming, outside. With each breath of yours, you are getting more and more relaxed. Come to your heart. Feel the pump. You can feel your heart pumping very slowly, very gradually. That's the thing which is connected to your brain. When the brain is relaxed, the heart is relaxed. With each breath of yours, your heart is also getting very relaxed. अब अपने मन में काउंटिंग करें 10 to 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और जैसे ही 1 हो जाएगा we'll open our eyes. तो मैं काउंट करता हूँ. ओके 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. मेक श्योर जब आप अपनी आंख खोलें तो इट शुड बी वेरी स्लोली, वेरी ग्रेजुअल, एकदम सडनली नहीं खोलनी है. 3, 2, 1. ग्रेजुअली ओपन योर आईज. बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें. बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें. जस्ट फील पहले में और अब में कुछ फर्क महसूस हो रहा है. So good. This is what has truly shed light on an often overlooked aspect of the disease. The emotional and psychological challenges that patients face are just as important as the physical ones. And Dr. Talha's expertise has helped us understand the deep connection between cancer and mental well-being. Let's all give Dr. Talha Shamim a big round of applause for his valuable contribution. Now, I would like to call upon Vice Chancellor Sir, Dr. Dharamveer Singh, Principal of Nursing Department, Dr. Sonia Sharma, Head of Department, Dr. Rohit Sir, and Associate Professor, Mr. Vishal Daryar, to kindly come on the stage for the felicitation of Dr. Talha Shamim. Thank you for calling me. Respected Chief Guest Sir, Ma'am, esteemed guests, dear colleagues, and all my lovely students. It's my honor. It's an honor for me to stand in front of you for this significant occasion, World Cancer Day. The day that reminds us that cancer is just a chapter of our life. It's not a whole story. So, stay strong, keep fighting. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our chief guest, Sir and Ma'am. Your presence and valuable insight, it's truly inspire us. Your inspiring word provoke us and motivate us for proactive step against cancer. Your efforts help you to hope millions of lives. I want to appreciate all the organizing team members, VC Sir, Pro VC Sir, our Vice Chancellor Sir, and Chairman Sir, Vice
President, sir. From Nursing Department, it is headed by Professor Sonia Sharma, ma'am. Thank you, ma'am. And in another hand, from Pharmacy Department, it is headed by Mr. Vishal Valyan, sir. Thank you, sir. And all the team members, volunteers, account departments, and organizing team members. Thank you so much for making this event successful. And with the help of that, we get a clear idea regarding early detection, prompt action, how important it is for prevention of cancer. To our audience, I appreciate your patience and your participation. The awareness, it is, for by my side, awareness is not just a piece of thing, it is just happened by the one individual. Group activity, you all have participated in this occasion and your engagement, it is truly appreciable. I would like to say, let's continue, stand together, educate others and work together to cancer-free world. Once again, thank you so much all of you. Thank you so much.